Hello students, today we are going to derive the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. So before that, let me tell you what is parallel plate capacitor. It consists of two metal plates having same area and held parallel within a very small separation. Two metal plates having identical plate area, identical plates held in a very small separation, and the space between the plate can be filled with air, vacuum or any other dielectrics. According to that, the capacitance will change. Now here we are going to discuss about the capacitance of a parallel plate capacitor in case of air or vacuum in between the plates. Now here there are the two plates here. Okay, side view is done. This is the plate. You are observing this side. That's why one line is there. So one plate is earth. Now if you will charge this one as plus Q, then automatically this charge will appear at the inner surface, while exactly equal and opposite charge will be induced in this plate. Got it? Now, as you know that to find the capacitance of any capacitor, we have a simple formula, C is equal to Q by V. Now, what is Q here? Q is the charge given to the capacitor. If there is a single body, you have to charge the capacitor, charge the body as Q. Or if you have two bodies in a capacitor, then V stands for potential difference. So you have to consider, you have to find the potential difference to get the capacitance. So that's why let us charge both the plate first. Basically charge the first one, automatically this one will be charged due to induction of earth. Now let us find out the potential difference. Now we know the formula for potential difference, as we know that V equal to how much? V equal to minus integration of E dot dr, that is limit 0 to d difference. Now if we have to find the potential difference, means potential of positive plate minus potential of negative plate. Are you getting my point? Potential of positive plate and negative plate. So that's why this is the lower, this is the higher. Are you getting my point? So that's why let us take a small dl vector here, and electric field in between the plates will be higher potential to lower potential. This will be the direction of field. Let us take a small dl here. Now if you will extend the formula, you will get here, since E is constant, keeping outside, this is dr cos theta 0 to d. Now V equal to minus E dr, look here, theta is 180, angle between dl vector and E vector. Now 0 to d. So you get V is equal to E integration of dr 0 to d, or you can write V is equal to E into d. Okay guys. Now let us find out the electric field intensity at any point in between the plates. Let us place a point P here. Look carefully. Now since there are two plates, we will have two electric field, one due to positive plate, one due to negative plate. We know field due to positive plate will be radially away, that means here towards right, and field due to negative will be radially inward, that is also right. So that means both the field E1 and E2, or field due to positive plate and negative plate, will act along the same direction. So that's why the net field intensity E will be, that is E1 plus E2. Now I can write E is how much guys? Sigma by 2 epsilon 0. Now one important thing is, though plates are used in the capacitor, but the charge is present only on one side. So that means we have to use the formula for sheet, not for the plate.
though plates are used, the formula for electric field due to plate is sigma by epsilon 0. But here charge are not present on the both side of the plates. That's why we have to use the formula for sheet. So due to 2 sheet, sigma by 2 epsilon 0, sigma by 2 epsilon 0. Now E will be sigma by epsilon 0. Now what is sigma, guys? Sigma is charge by area, isn't it? Charge by area. And what is E we got there? E is equal to, look, E is equal to V by D. Now we can put E is equal to V by D. So from this we can have Q by V is equal to epsilon naught A by D. Okay, and which is Q by V is C. So the final formula is, tell me, what is the final formula? Final formula, C will be epsilon 0 A by D. This is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor with air or vacuum as medium. 1 मिनट देख लो, फिर डिफरेंट केस करेंगे. तो ये एयर वैक्यूम के बाद हम लोग लेते हैं इन केस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स. थोड़ा सा चेंज करना होगा, बाकी सब सेम रहेगा. ये केस बी होगा. अगर एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. डेरिवेशन में तो सेम रहेगा, बस यहीं पे चेंज होगा. ध्यान से देखिए, मैं निकाल देता हूं. ध्यान से, ये तो फॉर्मूला हो गया बच्चों. अगर डाइलेक्ट्रिक रहा तो ये पूरा का पूरा जो है आपका स्पेस पूरा डाइलेक्ट्रिक से अगर भर दिया जाएगा तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा. कहाँ? ए पे चेंज होगा और कहीं नहीं. ये इप्सिलॉन हो जाएगा. ध्यान से देखिए, तो ये इप्सिलॉन होगा, परमिटिविटी भी रहेगा, ठीक है नहीं. तो यहाँ हम लोग आर कर सकते हैं, इप्सिलॉन आर भी. तो यहाँ भी इप्सिलॉन आर होगा, देख रहे हो. तो यहाँ भी इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर. ध्यान से देखिए, बता देता हूँ. इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए बाई डी. ध्यान से देखिए, पता तो होगा ना, परमिटिविटी इज इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर. हो गया बस. तो बच्चों ये हो गया. अगर दो प्लेट के अंदर जितना स्पेस है वो स्पेस अगर सिर्फ एयर और वैक्यूम या कंप्लीट स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाएगा तो ये फार्मूला होगा. एयर के लिए ये 1 होगा बस. तो ये कॉमन फार्मूला है अगर फुल डाइलेक्ट्रिक के लिए. ये याद रखना. अगर मीडियम एक ही मीडियम होगा, दो प्लेट के अंदर अगर एक ही मीडियम होगा, तो फिर हम बात करते हैं थर्ड केस. उसका थर्ड केस क्या होगा बच्चों? ये होगा इन केस ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक्स. इन केस ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक. तो पार्शियल डाइलेक्ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप, वही फॉर्मूला यूज करेंगे एयर वाला. पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मतलब हुआ, देखिए ये मान लीजिए पूरा स्पेस है, ठीक है. तो ये डिस्टेंस डी है. ये सब ने किया था, बाकी सब ये अर्थ किया था मैंने. तो ये वाला स्पेस में आप लोग एक डाइलेक्ट्रिक भर दो. टोटल ये जो गैप है ये डी है, मान लो टोटल डी है. ये जो डाइलेक्ट्रिक का विड्थ है ये टी है, ठीक है. तो यहां अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, नीचे तो नेगेटिव होगा. ध्यान से देखिए, सेम फिगर है, मैंने उल्टा बना दिया बस, हॉरिजॉन्टल बना दिया. अभी ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है कैसे रखते हैं? ये एक प्लेट हुआ, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हुआ. प्लेट का डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया सेम होना चाहिए, बस यहां रख दिया मैंने. तो बाकी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ये उसका अलग है. मगर पैरेलल प्लेट में ये एक प्लेट हुआ, ठीक है. तो ये एक प्लेट स्लैब इसे रहा, फिर ऊपर प्लेट. तो अभी एक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, उसे कहते हैं एयर इक्विवेलेंट, ठीक है. उसे कहते हैं एयर इक्विवेलेंट.
मतलब ये है, अगर दो प्लेट के बीच में एयर है तो उसके लिए तो फॉर्मूला है। अगर डाइलेक्ट्रिक हुआ तो उसका एयर इक्विवेलेंट कितना होगा वो हम अभी निकालेंगे। तो हेडिंग क्या देते हैं हम लोग, एयर इक्विवेलेंट। पहले एयर इक्विवेलेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पहले बच्चों ये समझो कि टी क्या है। टी है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है और विड्थ टी है। यहां हमने फिट कर दिया, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कैपेसिटर है, प्लेट सेपरेशन डी है, और ये सेम प्लेट में और एक कैपेसिटर बनाया गया विद डाइलेक्ट्रिक, जहां उसका विड्थ है टी। तो बच्चों विड्थ होगा यहां मान लीजिए टी। तो यहां प्लेट सेपरेशन इसे एडजस्ट किया गया ताकि कैपेसिटेंस दो केस में सम हो सके। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर हम लोग एयर मीडियम में जो कैपेसिटेंस होगा और डाइलेक्ट्रिक में जो होगा, अगर दोनों केस में कैपेसिटेंस इक्वल होगा, ध्यान से सुनिए, अगर कैपेसिटेंस सेम हुआ तो जो D को कहेंगे एयर इक्विवेलेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसका एयर इक्विवेलेंट होगा D, T का एयर इक्विवेलेंट होगा D। तो कैपेसिटेंस सेम होगा। तो एयर मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, इप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R A बाई T, एरिया सेम होगा, बता दिया था मैंने। तो अभी निकला क्या, T इक्वल टू D इक्वल टू क्या मिला आपको, D इक्वल टू रिवर्स उल्टा करने से T बाई इप्सिलॉन R। तो बच्चों यहाँ जो एयर ऑलरेडी है वो तो है D माइनस टी। जितनी विड्थ में डाइलेक्ट्रिक्स है उसका जो एयर इक्विवेलेंट है हमने निकाला ये। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका कैपेसिटेंस जो होगा, अगर मैं एयर सेपरेशन D माइनस टी पहले था डाइलेक्ट्रिक के लिए, ये लिया एयर इक्विवेलेंट, अगर इतना विड्थ में कर दूं एयर में तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा। तो सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इप्सिलॉन A D माइनस टी प्लस T बाई इप्सिलॉन R। ध्यान से देखिए, ये आपका एयर गैप है, ये आपका एयर इक्विवेलेंट है। पहले ये समझिए एयर इक्विवेलेंट क्या है। अगर T विड्थ का डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन R है, तो उसका रिप्लेसमेंट में हम लोग कितना एयर गैप लेने से कैपेसिटेंस सेम होगा, T माइनस इप्सिलॉन R। तो अगर बच्चों इसमें अगर ज्यादा डाइलेक्ट्रिक रहा, तो यहाँ तो एक ही है, मैंने एक लिया था, अगर एक से ज्यादा हुआ डाइलेक्ट्रिक्स, इसकी बात करते हैं तो डेरिवेशन नहीं पर समझेगा हम। अगर ये वाला हो गया, पैरेलल प्लेट हो गया, तो यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया, यहाँ भी एक लगा दिया, और भी है, ये प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस होगा सेम फॉर्मूला होगा, देख लीजिए आप, इप्सिलॉन नॉट A, यहाँ एयर गैप था D माइनस टी, एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, तो यहाँ बहुत सारे हैं माइनस T1 माइनस T2, आप लोग को ये हो गया आपका एयर गैप, प्लस एयर इक्विवेलेंट T1 के लिए क्या होगा, T1 बाई इप्सिलॉन R1, T2 के लिए क्या होगा, T2 बाई इप्सिलॉन R2। बस हो गया ये फॉर्मूला, फिर चलता जाएगा, जितना डाइलेक्ट्रिक होगा आप कंटिन्यू कर लेना, ये हो गया अगर ज्यादा डाइलेक्ट्रिक हुआ, ठीक है। 3 फॉर्मूला पर पढ़े हम लोग, एक तो एयर मीडियम, एक तो फुल डाइलेक्ट्रिक, एक पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, ये तीनों को याद रखना। थैंक यू गाइज।